everyone. I am Deepak. I hope all of you will be very well. So today we will discuss about practical of HTML as we have completed in previous two video. जैसे कि हम लोग ने पहले 2 वीडियो में कुछ चीज़ें हम लोग ने कंप्लीट कर ली हैं, अब उसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि उसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में 4-5 पॉइंट को कवर करेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, दे आर गिवन द फर्स्ट पॉइंट। सो वी विल लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू अप्लाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML को कैसे अप्लाई करेंगे एज अ प्रैक्टिकली। एंड सेकेंड, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी। They are given 2 attributes of body: background, color and image. Third one, headings. As well, in the previous videos we have covered there are 6 type of headings, so we will cover here. Next one, 4 point, paragraph. We will create a paragraph and we will apply bold, italic and underline. So let's start. First of all, we have to make a folder. सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है एंड वी हैव टू पुट दी इमेज हियर। एक हम लोग यहाँ पे इमेज पुट कर लेते हैं। आई एम रिप्लेसिंग हियर द नेम ऑफ इमेज 1 एंड सेकेंड वंस वी हैव टू ओपन नोटपैड। वी हैव टू सर्च हियर नोटपैड। हमें यहाँ पे नोटपैड सर्च करना है, नॉर्मल्स। एंड नेक्स्ट वंस व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमको बेसिक स्ट्रक्चर का कोड लिखना है ऑफ HTML। लेट्स सी HTML। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। So this is your basic structure of HTML. We have to open HTML and body. Sorry. After HTML, we have to open head. Next, we have to open title. We have to give the name of title. Suppose I have given a today. Next one, we have to close head. हमको यहाँ पे head को close करना है। Let's see, we have to open the body. जैसे हमें पता है कि we can write everything inside the body, so we will write like that. This is your basic structure of HTML. First we have to open HTML. हमें HTML text को open करना है। Then we have to open head. Head को open करना है। Then we have to give the title, 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 that representing all the information about the website. Next one, heading means head को close करना है। So this is your head parts. Next one, we have to open body and after that we have to save. हमें क्या करना है, save करना है अपनी फाइल को। So I am saving here. As you know, when we are saving your file, so we have to use here file name and dot HTML. हमें क्या करना होता है, अपने फाइल को सेव करने के साथ में डॉट HTML का भी यूज करना होता है। हम यहाँ डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे कि इफ वी आर यूजिंग डॉट HTML और वी आर नॉट यूजिंग HTML, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है। लेट्स सी। I'm giving here the name. Suppose this is my first file, so I've given here first and I'm saving here. हम इसको सेव कर देते हैं without dot HTML, बिना किसी dot HTML के। Let's see, we can minimize here and you can see here this is your first. This is representing, this is notepad. As you can see, they are given type text document. आप देख सकते हैं यहाँ पे text document के नाम से सेव हो गई है। जब हम डॉट HTML का यूज़ नहीं करते हैं सेव के टाइम पे, तो हमारा जो फाइल सेव होती है वो डॉट टेक्स्ट के फॉर्म में सेव हो जाती है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव होती है।
This is not a HTML. So we have to save here again, save as. After file name we can use here .html. हमें यहाँ पे देना होगा .html. After save it, let's see what happened. आप देख सकते हैं difference between if we have not using .html, so your file will be saved in this format. आपकी जो फाइल होगी इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, टेक्स्ट के फॉर्मेट में. When we use .html, जब हम .html का यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर ब्राउजर के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी. सो लेट्स सी ओपन हियर. हम इसको ओपन करते हैं एंड दे आर गिवन सम मिस्टेक. लेट्स सी क्या मिस्टेक है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ मिस्टेक है. दे आर गिवन टुडे एंड टाइटल्स. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? No, there are no any problems. What is the problems? Okay. Now you can see they are given title name today. हम यहाँ देख सकते हैं आपका टाइटल नेम क्या दिया गया, टुडे. जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी HTML फाइल में दे रखा है टुडे. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हैज कमिंग. फर्स्ट स्टेप हैज डन. पहला स्टेप हम लोग का डन हो गया है. योर बेसिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वंस वी आर राइटिंग समथिंग हियर. हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि जो भी हम टाइप करते हैं बॉडी के अंदर ही टाइप करते हैं. हमें पता है जो हमको टाइप करना है और जो भी वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा वो बॉडी के अंदर ही टाइप होना चाहिए. लेट्स सी, दिस इज माय फर्स्ट HTML फाइल. मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माय फर्स्ट HTML फाइल. ये हमारे बॉडी में. लेट्स सी ब्राउजर्स, देयर आर नथिंग एनीवन. यहाँ पे कुछ भी कोई भी टेक्स्ट नहीं है. नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब हम कभी भी अपनी HTML फाइल को एडिट करते हैं, चेंजमेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे सेव करना ज़रूरी है. इट्स मस्ट वी हैव टू सेव अगेन एंड अगेन योर फाइल व्हेन वी आर चेंजमेंट एंड एडिटिंग हियर. अगेन हम अपने ब्राउजर्स में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे. लेट्स सी, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज. ओके, अब यहाँ पे हम चेक कर देंगे फटाफट बैकग्राउंड कलर कैसे यूज करना है. सो बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास दिया रखा है बॉडी स्पेस BG कलर. दिस इज योर एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी. ये एट्रीब्यूट है बॉडी का. आई हैव गिवन योर नेम हियर रेड. हमने यहाँ पे रेड कलर का नेम दे दिया. अगेन सेव, हमें अगेन सेव करना अपनी फाइल को. वी हैव टू सेव अगेन फाइल एंड वी हैव टू गो ब्राउजर्स एंड रिफ्रेश. यू कैन सी हियर बैकग्राउंड कलर हैज चेंज्ड. नेक्स्ट, अगर इसी के प्लेस में हमें इमेज का यूज़ करना है, इसके प्लेस में हम लोग को यूज़ करना बैकग्राउंड डैश इमेज इक्वल नो सॉरी वी हैव टू यूज हियर ओनली BG कलर. हम लोग यहाँ पे BG कलर नॉर्मली में यूज करते हैं. बैकग्राउंड इमेज यूज करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा स्टाइल एंड इक्वल सेमी कॉलन मीन्स डबल कोटेशन मार्क्स. नाउ बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL and open small bracket and close bracket, and we have to give the name here of your file name. Suppose they are given a file names. हम लोगों ने अपनी फाइल को सेव कर रखा है 1.jpg. ये भी इम्पोर्टेंट है. उसके एक्सटेंशन नाम भी देना पड़ेगा JPG. चेक करते हैं. नो, सम मिस्टेक हियर. व्हाट इज द मिस्टेक? No.
यहाँ पे बैकग्राउंड की स्पेलिंग मिस्टेक है. What is the problem? BACKGROIN image URL and 1.jpg. Okay, let's see. The image has supplied. So they are given two things. यहाँ पे दो चीज़ों को याद रखना होगा हमें. स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन मार्क बैकग्राउंड डैश विदाउट एनी स्पेस इमेज कॉलन URL एंड ओपन ब्रैकेट 1 मीन्स इमेज का नेम डॉट JPG क्लोज ब्रैकेट एंड क्लोज डबल कोटेशन मार्क. तो हम लोगों ने बहुत इजीली से दो चीज़ें देख ली हैं. दिस इज वन फॉर बैकग्राउंड इमेज. In case suppose we have to use background image, so we have to use here BG color green. तो दोनों यहाँ पे टैग्स हमको दिया गया है. बॉडी के लिए बॉडी फॉर स्टाइल एंड बॉडी BG कलर्स. ओके, नेक्स्ट चीज दो चीज हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया. अब हमें कवर करना है कि हम लोग कैसे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है. तो उसके लिए हमारे पास B टैग्स होता है. B फॉर बोल्ड. वी हैव टू ओपन एंड क्लोज. हमें स्टार्टिंग करनी है ओपन एंड क्लोज से. ओपन एंड क्लोज. फाइल को सेव करना है Ctrl+S से. वी हैव टू गो बैक एंड रिफ्रेश F5 बटन. यू कैन सी दे आर गिवन लिटिल बिट डार्कनेस बोल्डनेस. लेट्स सी नेक्स्ट वन. हम इसको कॉपी कर लेते हैं and we can use here BR break line and paste here. And we can use here, हमें यहाँ पे यूज करना है italic. So for that we can use I. Italic means थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा. चेक कर लेते हैं यहाँ पे. लेट्स सी. आप देख सकते हैं यहाँ पे italic में थोड़ा सा तिरछा हो गया italic. नेक्स्ट में हम लोग को चेक करना है अंडरलाइन. तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास U फॉर अंडरलाइन. ये हमारे सारे टैग्स हैं जिनको हमें याद भी रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन. Just wait to. Now you can see here this is for bold, this is for italic and this is for underline. यहाँ पे तीनों चीज हम लोग का हो गया है. Let's see how to create headings. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे heading कैसे बनाएंगे. So for that there are 6 headings in HTML. So we are going to explain first. This is my first heading and after that we have to close it. उसके बाद हमें close करना होगा. So let's see. This is your first headings and we have to refresh here web browsers. You can say this is my first heading. Understand? Similarly we have to use 1 to 6. 1, 2, 3 and we have to change the number of 3 and 4 and we have to open the headings 4, 3 and 2. Means what happened here, this is heading 2 H2 open and H2 close, H3 heading 3 open and heading 3 close, heading 4 open and heading 4 close. So let's change the numbers. This is my second heading and this is third heading and this is fourth heading. Let's see. You can see here this is first heading, second heading, third heading and fourth. Similarly we can use here 5 or 6. We have to use here 5 and 6. We have to change the numbers here 5 and 6, 5
sorry, 6 and 5, and this is my sixth heading, and this is seventh heading, sorry, 5 and 6, sixth heading. Let's see. So first heading, second heading, third heading, fourth heading, 5 and 6. This is at least heading at the last, and this is my first heading. I think you have to understand about the headings. According to this, and similarly we can create paragraph. ऐसे हम लोग पैराग्राफ यूज करेंगे, टैग P, and this is my first paragraph, and you have to close paragraph. तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, टेक्स्ट आ जाएगा. So this is my first heading. So I think you have understand about the bold, italic and underline, headings, 6 headings and paragraph. It's easy. I hope you have understand. एक सिंपल सा वीडियो था जो आपके बॉडी को कैसे इमेज प्रोवाइड करनी है, कैसे बैकग्राउंड यूज करना है, और अपने बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है. नेक्स्ट वन, हम टाइटल कैसे यूज करते हैं. सपोज वी कैन यूज हियर गूगल एंड सेव एंड लेट्स सी. आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल हो गया. जैसा हम लोग चेंज करना चाहते हैं टाइटल का नाम, वी कैन मेंशन हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल. अगर और भी कोई किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं बाय मैसेजिंग. थैंक यू.